students. Today I will discuss about a story. The story of village Palampur. It is the first chapter of economics. And the main purpose of this story is to introduce some basic concepts. And these concepts are relating to the production. And it's a imaginary story. फार्मिंग इज द मैन एक्टिविटी इन पालमपुर. फार्मिंग क्या है? फार्मिंग मैन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज की. एंड वेरियस सेवरल अदर एक्टिविटीज़. एंड वहीं पे अदर एक्टिविटीज़ भी है जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources. Various types of resources की needs भी रहती है, requirement रहती है. Natural resources. As a natural resources means those resources which are obtained by the nature directly. Man-made items, human efforts, money, etc. In this village has about 450 families belonging to several different castes. The upper 80 families, the 80 upper caste families own the majority of land in the village. Majority means टोटल जो लैंड एरियाज़ है उसका मेजोरिटी पार्ट, एटलीस्ट 60% लैंड पार्ट किनके पास है? ओनली 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास. देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज. जो लार्ज हाउसेज है आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट एंड ऑल्सो दे हैव सीमेंट प्लास्टरिंग. एंड द SC कास्ट एज द दलित्स comprise 1/3 of the population and they live in one corner of the village, and their houses much smaller houses, some of which are made of mud and straw. Most of the houses have electric connections. Most of the houses have their own electric connections, and electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. इलेक्ट्रिसिटी पावर का अदर वेरियस टाइप्स में भी यूज़ किया जाता है. एंड इन पालमपुर विलेज ओनली 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. There is a primary health center run by the government. गवर्नमेंट के थ्रू एक चलाया गया एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है. एंड ओनली 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द sick persons are treated. Palampur is well developed and connected with neighboring villages and towns like रायगंज एंड शाहपुर. पालमपुर के जो नेबरिंग विलेजेस एंड जो टाउन्स है लाइक रायगंज एंड शाहपुर वो वेल डेवलप्ड विलेजेस है. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज इमेजिनरी. जो स्टोरी है पालमपुर की वह इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक है. दैट विल अलाउ अस टू नो अबाउट फार्मिंग वेल. जिसके थ्रू हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि कैसे फार्मिंग को अच्छे से किया जाए. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. देयर आर 2 एक्टिविटीज़, फार्म एक्टिविटीज़ एंड द नॉन फार्म एक्टिविटीज़. नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द फर्स्ट इज land, labor and physical capital. Land. The first requirement is land. The first requirement is land.
and and other natural resources such as water, forest and minerals. जो रिक्वायरमेंट्स है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या आता है, लैंड, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, एंड द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. इन सम एक्टिविटीज रिक्वायर fully qualified workers. In some activities require fully qualified workers. Qualified workers चाहिए, highly educated workers चाहिए, ताकि वो अपना जो वर्क कर सके, परफॉर्म करेंगे वो नेसेसरी टास्क. So they perform necessary task, and in some activities require only workers who have physical capacity as a labor. But in every activity labor is vital. Physical capital. In physical capital there are three types of physical capitals: the fixed capital, human capital and working capital. इन फिज़िकल कैपिटल तो फिज़िकल कैपिटल में हम पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड कैपिटल. एज ए टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल्स. Tools and machines range from very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines. जो फार्मर्स जिन टूल्स का यूज़ करते थे, सिंपल टूल्स का यूज़ करते थे, बट आज हम किन चीज़ का यूज़ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन्स. सोफिस्टिकेटेड मशीन मीन्स जो मॉडर्न मशीन्स है, अत्याधुनिक मशीन्स है, इनका यूज़ करते हैं, जैसे कि जनरेटर्स, टर्बाइंस, ट्यूल्स, computers, buildings, machines, all are sophisticated machines. The second is working capital. Production requires a variety of raw material. प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक यार्न. जैसे कि यार्न का यूज़ किस लिए किया जाता है, वेवर, कपड़ा बुनने के लिए हमें यार्न चाहिए, पॉटर को क्ले चाहिए, मटका बनाने के लिए क्ले चाहिए. ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी मटेरियल्स. ऑल्सो हैव सम मनी भी होनी चाहिए ताकि वह पेमेंट कर सके लेबर्स का, एंड बाय कर सके, बॉट कर सके अदर नेसेसरी मटेरियल्स को. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल. जो रॉ मटेरियल्स एंड मनी है जो हमारे हाथ में, उसे ही क्या कहा गया है, वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल. वी कैन ऑल्सो से दिस इज द फोर्थ रिक्वायरमेंट. जो ह्यूमन कैपिटल है या ये क्या है, फोर्थ रिक्वायरमेंट है. वी विल नीड नॉलेज. तो नॉलेज होनी चाहिए. जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड नॉलेज भी होनी चाहिए. एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट. नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ से तो हमें रॉ मटेरियल लेना है, एंड कहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेस करना है, वर्क करना है, गुड्स प्रिपेयर करना है, एंड हमें कैसे उसको आउटपुट करना है. मार्केट में भी तो उसको सेल आउट करना पड़ता है उन गुड्स को. These days is called the human capital. So every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. Okay.